Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing first chapter of the physics part 2, and that is what is the elasticity. That is the property of solid. So that is actually a mechanical property of the solid material. Your chapter number 9. So friends, basically in this chapter, as you know, you are having three concepts. Number one, strain. So friends, as you know, so friends, we know that we'll be having a three kind of strains are there. स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, बोले रिलेटिव चेंज. बोलो किसी को याद है कौन कौन से टाइप के स्ट्रेन थे जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे. Shearing stir, Longitudinal strain. And anybody remember the formula of the longitudinal strain? Delta L by L. So change in the length upon the original length, right? Then after we all discussed about the volume strain, that is also known as a bulk strain. So what was the volume strain? Delta V by V. Delta V by V. And then after we discussed the shearing strain, and that is actually elongation in the shape, and that can be found by finding the tan theta, and that was approximately theta, as a theta is very small, and that was written as a x upon h. So what do you mean by x by h? So suppose this is our assume that this is our cuboid, cubical kind of object, and suppose somebody has applied the force tangentially to the upper surface. So if we apply the force tangentially to this upper surface like this, so what happened to this? The upper part of the surface will be slightly moved in the effect of the tangential force. Let it be the moved by distance x, and height of the object is assumed to be h. So angle which is changed here is a theta. So I can say this tan theta is approximately x by h. Is that clear, friends? Yes, sir. So that was the shearing strain. Okay. Then after we had discussed about the three kind of stresses as well. तीन टाइप के हमने स्ट्रेस भी डिस्कस किए थे. यस और नो फ्रेंड्स? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? Yes, sir. हाँ, स्ट्रेस Force का upon मतलब area. क्या? हाँ, more precisely we should say it is a
restoring force produced per unit area. Okay, friends. So when we apply Yes, any sir. force, when we apply the force to the body, when you apply the force to any body, if the body is remains in the same situation, so that means inside the body there must be a restoring force produced. And if the body is remains in the equilibrium, then in kind, if the body is remaining in the equilibrium, then we can say our applied deforming force and produced restoring force must be same. So that's why generally the stress is a, actually the actual definition is a restoring force produced per unit area, but if the body remains in the equilibrium state, we can say it is applied force per unit area as well. So in place of a restoring force, it can be treated as applied force per unit area. Is it okay, friends? Yes, sir. So that was the stress. And we know that the stresses are also having a three kind of as a three kind of strains are there, three kind of stresses are also there. The very first is a obviously Longitudinal stress. longitudinal stress. So this is the applied normal force to the cross sectional area per unit area. Then after volume stress, so that is the only stress which is equal to the pressure. More precisely, it should be a increment in the pressure, change in pressure actually it is. Is it okay, friends? It is not just a pressure, it is a produced pressure. जो प्रेशर में Yes, इंक्रीमेंट sir. हो रहा है वो प्रेशर है, ठीक है. एंड Yes, sir. शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है ना, वो कौन से फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है? Integral force. सो दैट इज अ टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है. Yes, sir. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस. एंड व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस? देखो स्ट्रेन जो होता है वो यूनिट लेस होता है, बट स्ट्रेस Newton का per यूनिट क्या होगा? हाँ, यूनिट ऑफ द Newton per meter square. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. The third concept which we had learned in this chapter, that is about the moduli. So the third concept which we had learned in this chapter is the modulus or elastic constant. And the moduli is equals to, as we know, it is the ratio of stress upon strain. strain. Elastic constant is assumed to be a E, stress upon strain. So what should be the unit of the elastic constant? देखो strain जो होता है ना वो तो unitless होता है. Newton per meter square. हाँ, तो स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वही यूनिट होगा मॉड्यूलस का, एंड ऑब्वियसली इट इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So unit must be Newton per meter square. So as we have a three kind of stress, three kind of strain, so we have a three kind of moduli as well. The very first is a Young's modulus. Young's modulus. So Young's modulus is a longitudinal stress upon longitudinal strain, that is a force applied normal to the cross sectional area per unit cross sectional area upon delta L by L. So that is force normal applied upon a delta L. That is a Young's modulus. Then we had also a bulk modulus.
So bulk modulus, sometimes it is denoted by K as well, sometimes it is denoted by B as well. But सिंबल तो ठीक है, सिंबल में क्या रखा है, मेन चीज है क्या वो आपको समझना है. तो bulk modulus इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. तो वॉल्यूम स्ट्रेस इटसेल्फ Volume इज अ strain. प्रेशर upon delta V by V, but it should be taken minus, and more precisely in place of P it should be a delta P, because here it is not the pressure, it is increased in the pressure, it is applied pressure or change in the pressure. उसके द्वारा देखो क्या होता है कि हमारे ऊपर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगता ही लगता है, उसके साथ उसके द्वारा कोई स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस होता है, बट जो प्रेशर में इंक्रीमेंट आता है उसके द्वारा हमको स्ट्रेन फील होता है ऑब्जेक्ट का. तो दैट शुड बी प्रिसाइजली डेल्टा पी शुड बी देयर, एंड नेगेटिव साइन इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज बाय अप्लाइंग द प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेस. सो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वी बाई वी इटसेल्फ इज अ नेगेटिव, तो ये जो टर्म होगा नीचे का वो नेगेटिव होगा, बट बल्क मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता. टू मेक द बल्क मॉडुलस पॉजिटिव वी शुड राइट द नेगेटिव साइन हियर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. So that is what is the formula of the bulk modulus, increment in the pressure upon delta V by V. So ये bulk modulus का formula है, वो आपको पता है. And the third one is a shear modulus, or it is known as a modulus of Shearing modulus. it is also known as a Modulus of rigidity. Modulus of rigidity G. sometimes it is denoted by eta, sometimes it is denoted by G as well. So it is a shearing stress upon shearing strain. So it is a Ft by A upon X by H. So it is a Ft H upon X. Is it okay, friends? Yes, sir. ठीक है. Friends, we also Done, know sir. that the reciprocal of bulk modulus is a Compressibility. compressibility. So friends, that is a 1 upon bulk modulus is a compressibility K or C. ठीक है. So these are the three moduli that we had learned about. Yes or no, friends? Yes, Yes. sir. यहाँ पे एक चीज नोटेबल है जो आपने 10th चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है. फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल्स टू क्या था, ये आपको पता है? Sometimes coefficient of the viscosity can be treated as only viscosity as well. तो याद है आपको वो विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या था? किसी को याद है? in the form of the stress and strain. याद है किसी को? Anybody know the formula? Shearing stress upon shearing strain rate, याद है आपको? ठीक है. Yes, sir. सो ये चीज एक नोटेबल है, मतलब मिसगाइड मत होना. shearing stress upon shearing strain करोगे ना तो आपको मॉड्यूलाई ऑफ द रिजिडिटी मिलेगा, बट shearing strain रेट अगर कर दोगे ना आप तो वो क्या मिलेगा आपको? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिलेगा. ठीक है. Yes or no, friends? Yes, sir. फ्रेंड्स, ये सब चीज आपके कंटेंट में था. अब जो चीज नहीं था, जो आपके कंटेंट में से कैंसल था, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे. तो मैंने ना उसके लिए आपको जो नोट्स दिया है ना, मैंने इसके लिए आपको एक नोट्स दिया है ना, तो उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट जो आपके कंटेंट में नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं था 11th के, बट आपके टेक्स्ट बुक में था, JEE नीट के लिए था, तो वो सारा यहाँ पे मैंने लिख के दिया है.
तो वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग द वायर, देखो आप कोई भी वायर को अगर स्ट्रेच करते हो, कोई भी वायर को अगर स्ट्रेच करते हो, तो ऑब्वियसली you need to apply some force. Yes or no, friends? Yes, sir. Yes, sir. तो आप फोर्स अप्लाई करोगे और वायर के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करोगे, तो वायर के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करोगे तो मतलब आपने कुछ ना कुछ तो एनर्जी आपने यहाँ पे दिया हुआ है, बट वहां पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन होता है, बट वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी अचीव नहीं कर रहा है, उसमें कोई मोशन नहीं है। तो मतलब आपने जो वर्क किया वायर को डिफॉर्म करने के लिए, आपने जो एनर्जी सप्लाई किया, वो काइनेटिक एनर्जी में तो कन्वर्ट होगा नहीं, बिकॉज वायर तो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो तो वहां पर, मतलब वायर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तो वहां पे ही है, उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है। मतलब आपने जो भी एनर्जी वहां पे दिया है, जो भी वर्क आपने दिया है, दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द वायर एज इट्स will be stored in the wire as its, बोलो, restoring force. पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो अचीव नहीं हो रहा है। सो वर्क दैट you require to apply to deform the wire will be utilized as a potential energy stored in the wire. एंड उसका पूरा फॉर्मुलेशन है, आपको उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद रखना है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, याद रह जाएगा भैया। Yes, sir. सो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। Yes, sir. चलो, स्ट्रेस इज इक्वल टू, कैन आई से एफ बाई ए। मेरे संतोष सर ने करा दिया। हाँ ओके, मैं फटाफट 5 मिनट का काम है, फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। ओके, Okay, sir. तो ये वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू हाफ फोर्स इनटू द इंक्रीमेंट इन द लेंथ। ओके, ठीक है। Yes. मान लो कि इंक्रीमेंट इन द लेंथ को आपको x अज्यूम करते हो, तो आप उसको हाफ एफ एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। Yes, sir. Yes. इसको हाफ एफ एक्स भी बोल सकते हो, वेर इंक्रीमेंट इन द लेंथ इज x। अब फ्रेंड्स और एक चीज समझने लायक है यहाँ पे फ्रेंड्स, एज यू नो, Young's modulus is equals to stress upon, right now we are talking about the longitudinal parameters. Young's modulus is equals to longitudinal stress upon longitudinal strain. Yes or no, friends? Yes, sir. Yes, sir. So can I say it is a FL upon A delta L? Yes, sir. All नीचे। फॉल नीचे आया, तो मतलब अगर F को सब जगह इक्वेशन बनाओगे आप, तो कैन आई से AY डेल्टा L अपॉन L होगा, Yes, sir. चलेगा। Yes, sir. सो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हाफ F के बदले A यंग मॉडुलस अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये डेल्टा L को मैंने क्या अज्यूम किया है, चेंज इन लेंथ को, X. मान लो कि x है, तो इंटू एक्स करेंगे हम, इंटू एक्स। तो इसके ऊपर से फ्रेंड्स एक चीज हमको ये समझ आया कि ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने क्यों डिराइव किया, उसका रीजन क्या है, तो ये फॉर्मूला के डेरिवेशन से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग, तो कंपेयरिंग इट विद हाफ के एक्स स्क्वायर। So if you compare that formulas, so you will come to know that if we consider a wire as a spring, if we consider a wire as a spring, then it's a spring constant, क्या हो जाएगा भैया, Y by L. spring constant K is equals to Ayla. It is not the Alia, it is Ayla. Okay. Yes, sir. So अगर कहीं पे भी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में अगर बात किया हुआ है,
वायर कैन बी ट्रीटेड एज स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए बात हुआ है, तो यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला आइला. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Friends, one more thing here I should tell you that sometimes we need to find the energy per unit area, energy per unit volume. तो फ्रेंड्स उसको है ना एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं. तो एनर्जी डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो ऑब्वियसली एनर्जी डेंसिटी को रो अगर बोल देते हैं तो एनर्जी पर वॉल्यूम. अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो बोले हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम का तो क्या बचेगा? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन बचेगा. ठीक है. Yes, sir. तो whenever you wants to find the energy density, that is energy per unit volume, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये एनर्जी का फॉर्मूला था. फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लॉन्जिट्यूडनल पैरामीटर्स को अप्लाई किया है. लॉन्जिट्यूडनल मतलब सर हाँ बोलिए. सर जो थर्ड इक्वेशन है ना बॉक्स में, उसमें डेल्टा एक्स मीन्स एक्स जो है वो बहुत हाँ एक्स क्या है बोलो. स्मॉल होगा तो नेगलेक्ट कर सकते हैं. नहीं देखो, नेग्लेक्शन की जो बात है ना वो आप समझ नहीं रही है. निग्लेक्शन कब कर सकते हैं आप, पता है आपको? एडिशन हाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ही निग्लेक्शन कर सकते सब्ट्रैक्शन हैं. में. ओके. हाँ अदरवाइज देखो सीधी सी बात है. 1 करोड़ प्लस 10 रुपीज तो कितना होगा? 1 crore and 10 1 rupees. करोड़ ही होगा. यस और नो? यस बट कोई अगर ऐसा पूछे कि 1 करोड़ इंटू 10 तो क्या वो 1 करोड़ होगा? नो सर. वो 10 करोड़ हो जाएगा. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ So neglection की जो बात है, that must be remember that it Okay, is sir. possible only in the case of addition or subtraction. 1 करोड़ डिवाइड बाई 10 करोगे तो वो 10 लाख हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली. वो 1 करोड़ नहीं रहेगा. ठीक है. ओके. सर पर मल्टीप्लिकेशन में अगर वो पॉइंट समथिंग हो तो फिर उसका स्क्वायर हो तो फिर वो कर सकते. अरे क्या बोल क्या रहे हो आप? मतलब मल्टीप्लिकेशन में हो पर वो जैसे कि 0.23 हो फिर उसका भी स्क्वायर हो तो फिर कर सकते हैं ना. मतलब उसको टेंस टू जीरो कर सकते हैं. जैसे हाफ इंटू 50 इंटू 0.01 का स्क्वायर. तो ये 0.01 को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते आप. ठीक है. कैसे निग्लेक्ट कर सकोगे? इसका वैल्यू क्या 25 है क्या इसका आंसर? क्या नो सर. बट अगर ऐसा है, बट मान लो कि अगर ऐसा है कि 0.01 का स्क्वायर प्लस समथिंग तो निग्लेक्ट कर सकते हो. 0.01 का स्क्वायर प्लस 1 सपोज कि ऐसा है तो फिर इसको निग्लेक्ट कर सकते हो. ठीक है. यस सर. बट वापस से वही हुआ ना, वापस से वो एडिशन में ही निग्लेक्ट हुआ जो अल्टीमेटली. हाँ सर एडिशन में तो. ठीक है. यस सर. देखो ये एक एनर्जी का था. बट फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमने जो भी डिस्कशन किया था दैट इज करस्पॉन्डेंट टू द लीनियर चेंज. दैट इज फॉर द लीनियर चेंज. अगर टॉर्शनल चेंज है, टॉर्शनल मतलब अगर मान लो कि आपने एक वायर सस्पेंडेड है. देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके टेक्स्ट में है ही नहीं, बट बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पे सिखाया गया है. लुक एट दिस थिंग. या टॉर्शनल ऑफ द सिलेंडर. मतलब बहुत सारे क्वेश्चन. देखो ये टॉपिक दिख रहा है आपको, टॉर्शनल इन द सिलेंडर. यस सर. यस. तो फ्रेंड्स देखो दो चीज हो सकती है. मान लो कि एक वायर है, उसको सीलिंग के साथ सस्पेंड किया है. सीलिंग के साथ सस्पेंड किया है, केस 1. सो एक्चुअली दिस इज अ केस, एक्चुअली दिस इज व्हाट इज अ केस 1. एक्चुअली जो हमने अभी तक डिस्कस किया था वो केस 1 ही था. इसमें क्या है कि एक सीलिंग है और वहां पे या फिर कोई भी रिजिड रिजिड सपोर्ट है, वहां से वायर को मतलब एक एंड जो है उसका रिजिड है, उसके साथ अटैच्ड है, और दूसरे एंड से हमने वायर के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स एफ अप्लाई किया है. सो दिस इज ऑल दी फॉर्मूलाज
देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, उसको डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। एक वायर है, उसको एक साइड से उसको रिजिड एंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरे एंड के क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मली हमने फोर्स लगाया है। तो ये जो होगा वो लीनियर चेंज होगा। इज ओके, दैट इज ओके। यस तो सर। ये दोनों के लिए, ये जो भी कुछ डिस्कशन है, ये दो इस टाइप के केसेस के लिए है, ठीक है। बट मान लो कि केस नंबर 2, अगर हम वायर को पहले सस्पेंड किया है सीलिंग के साथ, अगर वायर को ये सीलिंग के साथ सस्पेंड किया है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, नीचे से उसको हम ट्विस्ट दे रहे हैं। ट्विस्ट, ट्विस्ट समझते हो? मतलब नीचे से उसको पकड़ के ऐसे रोटेट करते हैं, थोड़ा रोटेशन करते हैं, ट्विस्ट लगाते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? वी आर यस प्रोवाइडिंग सर। सम ट्विस्ट। तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना। यस और नो? यस यस सर। सर। तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। इसमें भी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो फॉर्मुलेशंस है वो सारे फॉर्मुलेशन देखो, यहाँ पे देखो, हमने वायर को ऊपर से, लुक एट दिस सिलेंडर, मतलब ये ऊपर का जो पार्ट है वो सीलिंग के साथ कनेक्टेड है, और नीचे से मैंने देखो उसको कितना ट्विस्ट दिया है, 5 जितना ट्विस्ट दिया है। देखो, दिख रहा है आपको? यस सर। ये वायर का जो ओरिजिनल जो उसका एक्सिस था, उसका जो क्रॉस सेक्शन था पहले, वो ये वाला था, राइट? मतलब ये वाला था। थोड़ा इलाज करते हैं। सो दिस वाज द इनिशियल क्रॉस सेक्शन, इनिशियल एक्सिस, और उसके बाद मैंने ट्विस्ट किया उसको, तो वो जो लाइन था वो यहाँ पे सेट हो गया। मतलब कितना हमने ऊपर से 5 जितना ट्विस्ट किया, ठीक है। तो ये 5 जितना ट्विस्टिंग हम कर रहे हैं, तो क्या लिखा है, इफ द अपर एंड ऑफ द सिलेंडर इज क्लैम्प्ड एंड द टॉर्क इज अप्लाइड एट द लोअर एंड एंड द सिलेंडर गेट्स ट्विस्टेड बाय द एंगल थीटा। मतलब नीचे का जो पार्ट है वो थीटा जितना ट्विस्ट हुआ है, ये रहा थीटा। तो ये जो पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ पे चला गया। तो एंड द साइमल्टेनियस शीयरिंग स्ट्रेन, आपको पता है कि ये जो एंगल बनता है इनिशियल क्रॉस सेक्शन और बाद में जो क्रॉस सेक्शन है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? शीयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, याद है? यस सर। यस सर। तो जो क्रॉस सेक्शन का जो एंगल है वो फाई है। क्रॉस सेक्शन इनिशियली ऐसा था और फिर ऐसा हो गया, और नीचे से जो ट्विस्ट है वो थीटा है। मतलब ट्विस्ट हमने दिया थीटा, देखो यहाँ पे ट्विस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं थीटा, एंड एंगल क्रॉस सेक्शन का बन रहा है वो फाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और उसके लिए जो फॉर्मुलेशंस किए हैं वो सारे फॉर्मुलेशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो JEE नीट के लिए आपको ध्यान में रखना है। सो व्हाट आर दैट फॉर्मूलाज? ओके, so the value of the angle of shear is directly proportional to the radius। कैसे? तो फ्रेंड्स देखो, सीधी सी बात है, ये नीचे का ट्रायंगल देखो, तो नीचे का ट्रायंगल देख रहे हैं आप, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? 5। आर्क अपॉन रेडियस होगा। यस सर। तो एंगल जो है वो थीटा है, आर्क मान लेते हैं कि AB है, रेडियस तो उसका RE है, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू आर थीटा। ये किसके लिए मैंने देखा? नीचे का ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, उसके लिए सोचा, ठीक है। यस। अब ऊपर का ट्रायंगल देखो, ये जो यस। ऊपर का, अब जो ये ऊपर का ट्रायंगल है वहां पे वापस से एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करो, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा? वापस से आर्क तो AB रहेगा, ठीक है, अपॉन बट कैपिटल उसका, हाँ बट उसका रेडियस कितना रहेगा अभी? एल। L रहेगा। वेरी गुड।
तो एंगल फाई इज इक्वल्स टू ए बी बाई एल। सो अब ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाई इंटू एल रहेगा। अब दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आपका शियरिंग स्ट्रेस जो मिल जाएगा वो आर थीटा बाई एल मिल जाएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो shearing angle of shear, that is a shearing stress as well, shearing strain as well। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स up till now? यस सर। ओके तो फ्रेंड्स ये आपका shearing strain मिल गया r थीटा बाई एल। अब twisting couple per unit twist, that is a torsional rigidity और torque required to produce unit twist, इसको torsional constant भी बोल सकते हैं। तो ये हम विदाउट प्रूफ ये प्रूफ कर सकते हैं हम, बट ये टॉर्शनल कांस्टेंट हम डायरेक्टली याद रखेंगे, पाई ईटा आर रेज टू 4 अपॉन 2l। एंड आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, हाफ के एक्स स्क्वायर था, यस और नो? किसके लिए था ना ये हाफ के एक्स, यस और नो? ये फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर, बट ये यहाँ पे के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट। बट इन प्लेस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। एंड इन प्लेस ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आएगा, थीटा, ठीक है। तो ये वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड इन दिस काइंड ऑफ ट्विस्ट, मतलब अगर कोई ऐसा पूछता है कि भाई वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन वायर का जो है वो आर है, तो उसको नीचे से थीटा जितना हम ट्विस्ट करते हैं तो कितना वर्क, कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो इसका फॉर्मूला ये हुआ। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? तो दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। तो ये वर्क डन का ही फॉर्मूला है, मतलब दो टाइप के यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। देखो वायर के लेंथ को इंक्रीज करते हो, मतलब लेंथ को चेंज करते हो, या उसका एंगल को चेंज करते हो, वो दो चीज यहाँ पे है, दो केस है। अगर वायर का लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो वर्क कितना होगा, तो बोले ऊपर का जो केस नंबर 1 है वो होगा। बट अगर वायर को आपने ट्विस्ट किया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो ये नीचे का केस है, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? ये समझ में आया भैया? भैया यस सर। एक और टॉपिक था, एक और टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन एंड द पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है भैया, तो बोले इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। रेशियो ऑफ लेटरल एंड लॉन्जिट्यूड, लेटरल पैरामीटर किसको बोलते हैं पहले तो देखो, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारा टॉपिक आपके जेडब्ल्यू नीट में है। सबसे पहले लेटरल पैरामीटर किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं। मान लो कि ये आपका कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, तो this is a keyboard, right? So friends, obviously this one is its length, ये इसका ब्रेड्थ है और ये इसका हाइट है, राइट? यस सर। तो फ्रेंड्स ये जो B एंड H जो है, मतलब लेंथ से परपेंडिकुलर पैरामीटर्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेटरल पैरामीटर्स, ठीक है। लेंथ से परपेंडिकुलर जो पैरामीटर्स है उसको लेटरल पैरामीटर बोलते हैं। देन दैट इज व्हाई डेल्टा B by B और डेल्टा H by H is considered to be a
lateral strain. Is that clear? Yes, sir. And what is the Poisson's ratio? Lateral stress. lateral strain upon Perfect. So Poisson's ratio sometimes denoted longitudinal by strain. mu, sometimes denoted by sigma. So mu is equals to, or sigma is equals to lateral strain upon longitudinal strain. समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, पूछो क्यों? क्यों? अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसको यहाँ पे दोनों साइड से मान लो कि आप फोर्स प्रोवाइड करते हो, यहाँ पे आप इसको फोर्स प्रोवाइड करके दोनों साइड से उसको एलोंगेट करते हो बाय प्रोवाइडिंग द फोर्स, तो डेफिनेटली उसका लेंथ तो बढ़ेगा, बट ब्रेड्थ एंड हाइट का क्या होगा सोचो? Decrease. मतलब अगर आप लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को पॉजिटिव लाना चाहते हो, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर पॉजिटिव लाना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? नेगेटिव होगा। डिक्रीमेंट होना मतलब डेल्टा उसका चेंज नेगेटिव होना, ठीक है? Yes, sir. तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, मतलब सपोज कि आप कंप्रेस करते हो, तो अगर कंप्रेस करते हो ना तो लेंथ डिक्रीज होगा, मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन नेगेटिव होगा, बट लेंथ भले ही डिक्रीज होगा, बट जब आप कंप्रेस करते हो तो ब्रेड्थ एंड हाइट के बारे में क्या कह सकते हैं? बढ़ेगा. वो Increment. बढ़ेगा, मतलब तो उसका पॉजिटिव होगा। मतलब एक चीज कंफर्म है कि दोनों एक दूसरे से Opposite रहेंगे. अपोजिट रहेंगे। अब ये जो म्यू होता है ना वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, देखो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा ऑलवेज, बट म्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखते हैं तो सोचो कि रेशियो में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा? अगर सपोज का नेगेटिव नहीं लिखा Negative. है, नेगेटिव आएगा। बट आपको पता है कि पॉइजन रेशियो नेगेटिव नहीं Negative. होना, पॉइजन रेशियो शुड नॉट बी नेगेटिव, तो मैंने पहले से ही क्या किया वहां पे Negative के नेगेटिव साथ. डाल दिया, तो फिर अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? Positive. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो is 0.5, ये प्रूव्ड थिंग है। and the relation, that is the result, relation between the volume strain, longitudinal strain and the Poisson's ratio, so this is the relation that you need to remember. Okay friends, ये आपको याद रखना Yes, है। sir. Is it okay Sir, वो friends? maximum 0.5 वो experimental. हाँ नहीं, वो प्रूव हुआ है, मैथमेटिकली प्रूव हुआ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है, हमको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है? Yes, sir. And the last topic that you need to remember, that is the relation between the uh, longitudinal strain, relation between the young modulus, bulk modulus, Poisson's ratio, and the Shearing, rigidity. shearing. हाँ ये दो बार लिख दिया है, तो ये वही का वही है। तो ये एक लास्ट टॉपिक जो है वो आपको, मतलब shear modulus, bulk modulus, young modulus एंड Poisson's ratio के बीच में रिलेशन जो है उसके 3-4 फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। वैसे अगर ये दो फॉर्मूला याद रख दोगे ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बाकी के फॉर्मूलाज आप उसके ऊपर से प्रूव कर सकते हो। हियर म्यू इज सिग्मा इज इक्वल टू म्यू, दैट इज अ पॉइजन रेशियो, ओके? Yes. Eta is the rigid modulus, shear modulus, K is a bulk modulus and Y is a young modulus. Is that clear? इसके ऊपर से ये दोनों प्रूव हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये सिग्मा को एलिमिनेट करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, एंड यंग मॉडल्स को एलिमिनेट मतलब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? मतलब आपको Yes, एक्चुअल sir. में तो दो ही फॉर्मूला याद रखना है, ये दोनों तो उसके ऊपर से प्रूव हो सकते हैं नीचे के, ठीक है? So these are the all the concept that is we had discussed. So अब हम कुछ critical, ये concept जो थे वो आपके सिलेबस में कुछ concept आपके टेक्स्ट में भी नहीं थे, कुछ आपके सिलेबस में भी नहीं थे। So friends, let's
Okay, let us solve some critical thinking questions. So one by one, let's start. Okay, critical नहीं कराया ना friends? नो सर। Okay, fine. देखो क्या लिखा है. Are you able to see the question in your mobile screen? Yes, sir. चलो क्या लिखा है. An Indian rubber cord L meter long and area of cross section area A meter square suspended vertically. Density of the rubber is D meter kg per meter cube and the Young modulus is the E Newton per meter square. If the wire extends by the L meter, मतलब change in length is L meter, small l. Otherwise, what is the extension L? Okay. सो फ्रेंड्स डेल्टा एल पूछा है, तो हमको पता है कि डेल्टा का एक्सचेंज फॉर्मूला क्या है. फॉल नीचे आया. यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे डेल्टा एल को स्मॉल एल बोला हुआ है. ओके, डेल्टा एल Yes. को स्मॉल एल बोला हुआ है. An Indian rubber of cord L meter long and cross sectional area of A meters suspended vertically. The density of the rubber. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मेरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड्स. एफ मतलब एफ. अब यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ कितना दिया हुआ है हमको? Capital L. कैपिटल एल. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हम A. कहना इसे पाई डी स्क्वायर बाई 4. नहीं, डायमीटर थोड़ी ना है, डी डेंसिटी है. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको क्या दिया हुआ है? ए ही दिया हुआ है. Yes, sir. तो ए रिमेन्स एज इट इज. एंड व्हाट इज द योर यंग मॉडुलस? E. चलो यहाँ तक समझ में आया. Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड्स. केस 1, ये वायर है और उसके नीचे एम मास सस्पेंड किया हुआ है. तो यहाँ पे वायर जो है ना, उसका वेट निग्लिजिबल है. वायर का खुद का वेट निग्लिजिबल है. दिस वायर इज हैविंग अ निग्लिजिबल वेट. वायर इज हैविंग निग्लिजिबल वेट. वायर का खुद का वेट है ही नहीं. एंड इट इज एलोंगेटेड, इट इज स्ट्रेच्ड बाय द मास m. तो फ्रेंड्स, वायर का नीचे का क्रॉस सेक्शन है, उसको सोचो तो उसको एलोंगेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा नीचे के क्रॉस सेक्शन के लिए? Mass. माजी. और ऊपर का क्रॉस सेक्शन है, उसको एलोंगेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो बोले माजी प्लस वेट ऑफ द वायर इटसेल्फ. माजी प्लस वेट ऑफ द वायर. बट वायर का तो वेट क्या है? Negligible. तो मतलब वायर के कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि वायर का कोई भी पॉइंट ले लो तो उसको एलोंगेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वायर का कोई माजी. भी पॉइंट माजी ही होगा. यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. वायर का कोई भी पॉइंट ले लो तो उसको एलोंगेट करने के लिए माजी ही रिस्पॉन्सिबल होगा. दैट्स व्हाई द फोर्स इक्वल्स टू माजी. तो हियर आई कैन से चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू फॉल नीचे आया, मतलब माजी एल नीचे आया. इज दैट क्लियर? दैट इज केस Yes, 1. sir. एंड केस नंबर 2, अब वायर इज एलोंगेटेड बाय इट्स ओन वेट. वायर के ऊपर कोई वेट हमने सस्पेंड नहीं किया है, वायर खुद ही वेटेड है. वायर का ही खुद का वेट है. दिस वायर इज हैविंग अ वेट. वायर का खुद का वेट है. तो अब सोचो कि ये नीचे का जो पॉइंट है उसको एलोंगेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नीचे के क्रॉस सेक्शन को उसको कौन खींचेगा? Weight खींचेगा वायर. कोई नहीं खींचेगा. वहां पे फोर्स 0 लगेगा, बिकॉज उसको खींचने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है. इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना. Yes, sir. नहीं है. बट ऊपर का जो पॉइंट है, क्रॉस सेक्शन है, उसको एलोंगेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसको खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल वायर है? का वेट. वायर वेट। वायर वेट. तो मतलब ऐसा हुआ कि अलग अलग जो पॉइंट है उसको खींचने के लिए
अलग अलग वेट रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लो कि कोई बीच का कोई पॉइंट है, अगर कोई बीच में एग्जैक्टली मिडल में जो पॉइंट है तो उसको एलोंगेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? माजी बाई 2, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे मुझे एफ का वायर के अलग अलग पॉइंट को एलोंगेट करने के लिए अलग अलग टाइप के फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे वायर के ऊपर इफेक्टिवली कितना फोर्स लिख रहा है, इफेक्टिवली कितना फोर्स लग रहा है, तो वो आंसर आएगा आपका माजी बाई 2। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, तो यहाँ पे डेल्टा sir. एल इज इक्वल्स टू फल नीचे आया, बट यहाँ पे एफ के बदले क्या आएगा? माजी बाई 2 आएगा। सर माजी बाई 2 कैसे है? तो वो माजी भी है, देखो माजी बाई 2 भी है। हाँ, मैं ऐसा बोला हूँ कि देखो ये डेल्टा एल क्या है, पहले मुझे ये बताओ कि डेल्टा एल क्या है। चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। वेरी गुड, चेंज इन द लेंथ इन द वायर ऑफ द होल वायर, ऑफ द होल वायर, जैसा नो यस सर। होल वायर मैंने बोला। यस। तो केस 1 में पूरे वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा था? पूरे वायर के माजी। कोई भी पॉइंट पे ऊपर फोर्स कितना लग रहा था एलोंगेट करने के लिए? माजी। केस 1 माजी। बट दूसरे केस में क्या पूरे वायर पे कोई भी पॉइंट पे माजी फोर्स लग रहा है एलोंगेट करने के लिए, यस और नो? नो सर। नो। मतलब तो फिर दूसरे केस में अगर पूरे वायर का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो। अलग अलग पॉइंट पे फोर्स अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? एवरेज। एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। और सबसे नीचे का जो पॉइंट है उसको तो कोई खींच ही नहीं रहा है, तो मतलब वहां पे हाँ। तो फोर्स जीरो है। ऊपर का जो है वो टोटली माजी पूरा पूरा वायर उसको खींचेगा, ठीक है। तो यस एवरेज सर। कितना निकलेगा पूरे वायर, अगर पूरे वायर के लिए रिजल्टेंट अगर एवरेज निकाले तो कितना मिलेगा हमको? माजी बाई। माजी बाई 2। इज दैट क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि हमारा जो क्वेश्चन यस। है, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर देखो दो चीज है, या तो वायर खुद निग्लिजिबली वेट, देखो दो केस हो सकते हैं, या तो वायर का वेट निग्लिजिबल है और उसके साथ सस्पेंड कुछ किया है, नंबर 1, या नंबर 2 वायर के खुद के वेट के द्वारा वो एलोंगेट होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या है, वायर खुद के वेट के द्वारा एलोंगेट होता है या उसके साथ वेट को सस्पेंड किया है? देखो सोच के बताओ मुझे। अपने वेट पे एक्सपांड यहाँ हो कुछ रहा ऐसा लिखा है, ओन वेट ऐसा लिखा हुआ है। है। यस सर। तो अब हमको कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? माजी एल बाई 2 ए बाई। हाँ, अब आया समझ में आपको? सो लेंथ, चेंज इन द लेंथ को स्मॉल एल दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू फल नीचे आया। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा माजी एल बाई 2a, एंड y के बदले आपको लिखना पड़ेगा e, बिकॉज यंग्स मॉड्यूलस को e बोला हुआ है, इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। आया बात यस। समझ में? इज इट Yes, अंडरस्टूड फ्रेंड? sir. अब मास इज इक्वल्स टू कैन आई से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यस सर। Yes, sir. एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कैन आई से क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ Yes, sir. into density into length upon 2ae। तो कहना इसे dl स्क्वायर अपॉन 2e हो जाएगा सब, ठीक है। यस सर। तो इंटू जी रह गया ना, मा जी इंटू जी तो रह गया भैया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एल इंटू जी इंटू जी इंटू जी, ठीक है। यस सर। तो फाइनली योर आंसर विल बी dl स्क्वायर g by 2e। इज देयर एनी ऑप्शन? ऑप्शन ए। नहीं सर। ऑप्शन बी, ठीक है। यस। Option B. तो आपको यहाँ पे दो केस प्रिसाइजली समझ में आया, दो अलग अलग केस। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Are you able to see the question number 2 in your mobile screen? Yes, sir. To break a wire, a force is 10 raised to 6 Newton per meter square is required. If the density of the material is this much, then the length of the wire which will break by its own weight. Okay.
sigma is equals to F by A. Yes or no, friends? Yes, sir. ओके देखो यहाँ पे फोर्स नहीं है, यूनिट देखो लिखा है फोर्स, बट यूनिट देखो उसका, तो यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो एक्चुअली इट इज Force नॉट per द, area. हाँ इट इज नॉट द फोर्स, एक्चुअली इट इज अ, Force per unit. हाँ ब्रेकिंग स्ट्रेन दिया हुआ है आपको, ठीक है, मतलब सिग्मा दिया है, फोर्स नहीं है बट सिग्मा है, ठीक है, ये समझ में आया पहले तो। Yes, sir. अब यहाँ पे यस F सर। के बदले इट्स ओन वेट मतलब माजी लेना पड़ेगा आपको। 2L वाला. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एलोंगेशन की बात कहाँ पे है भैया, यहाँ पे ब्रेक करने की बात है, यहाँ पे डेल्टा एल हम फाइंड नहीं कर रहे हैं भैया, ठीक है, Yes, sir. तो ऑब्वियसली वो ब्रेक कहाँ से होगा, तो ये खुद के वेट के द्वारा ब्रेक कहाँ से होगा ऑब्वियसली, तो ऊपर के पॉइंट से ही वो ब्रेक होगा, बिकॉज वहां पे टेंशन सबसे माजी ज्यादा लगता माजी होगा, तो मतलब माजी को ही कंसिडर करना है आपको, बिकॉज वहां से ही ब्रेक होगा वो, ठीक है। है. Yes, sir. अब m इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी इनटू g अपॉन a, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ इनटू डेंसिटी g अपॉन a, होगा ऐसा, Yes, sir. तो a गेट कैंसल्ड, तो मुझे है ना L फाइंड करना है, तो मेक द सब्जेक्ट L सब्जेक्ट इक्वेशन, Sigma by dg. तो सिग्मा बाय डेंसिटी इनटू g। अब सिग्मा हमको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ दिया हुआ है मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁶. डेंसिटी दिया हुआ है 3 × 10⁻³ एंड g का वैल्यू फॉर द सेक ऑफ द सिंपलिसिटी टेक इट एज अ 10। तो फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10 पावर 2 हो जाएगा, Yes, sir. 10 पावर 2 होगा ना, बराबर, 0.99. नहीं 100 डिवाइड बाई 3, तो 100 डिवाइड बाई 3 मतलब क्या हुआ, 33 अप्रोक्सीमेटली। पर 1 divided by 3 करके फिर 10⁻² अरे काट लेंगे. भाई ठीक है, अब जो करना है कर लो, नहीं ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है 34 आएगा। 34 आएगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। Yes, sir. 33.33 अप्रोक्सीमेटली 34, ठीक है, Yes, sir. चलो are you able to question number 3 is the question number 3. Yes, sir. Two rods of a different material having a coefficient of the linear expansion alpha 1 alpha 2। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज यहाँ पे मर्ज हो रही है, एक तो थर्मोडायनेमिक्स लीनियर एक्सपांशन का कोएफिशिएंट एंड दूसरा जो है वो यंग मॉड्यूलस, तो इसका ऐसा एक थ्योरी भी हमारे टेक्स्ट में है, तो बाय दैट थ्योरी किसी को याद है व्हाट इज द फोर्स, किसी को याद है डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला? अच्छा चलो जाने दो, तो अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद करा देता हूँ, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल Alpha delta. आया, ठीक है, फॉल नीचे आया, एंड डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है, टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी, Yes, sir. कंपेयरिंग देम। ये वैसे थ्योरी भी थी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, बट ठीक है अब चलो जाने भी दो। तो फोर्स इज इक्वल्स टू आया अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, Yes, sir. चलो इसका यूज होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे मैंने क्वेश्चन अभी पूरा तो रीड नहीं किया है बट लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, इसका यूज होना चाहिए। Two rods of a different material having the coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2 and Young's moduli y1 and y2 respectively are fixed between the two rigid massive walls. The rods are heated such that they undergo the same increment in the temperature. Temperature increment same है. There is no bending of the rod if the alpha 1 upon alpha 2 is 2/3. Thermal stress developed in the two rods are equally provided. मतलब थर्मल स्ट्रेस सेम है, तो y1 अपॉन y2 क्या होना चाहिए? तो पहली बात को हमको यहाँ पे स्ट्रेस की बात करना है, तो F/A मतलब y अल्फा डेल्टा टी करना पड़ेगा,
तो Yes, sir. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई अल्फा डेल्टा टी लिखो, चलेगा? नाउ गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमको? थर्मल स्ट्रेस सेम है, यस और नो? Yes, sir. तो y1 अल्फा 1 डेल्टा टी शुड बी इक्वल्स टू y2 अल्फा 2 डेल्टा टी Alpha होगा, to delta t. बट Yes, दोनों में sir. टेम्परेचर चेंज भी सेम दिया हुआ है, यस और नो? यस सर। तो फ्रेंड्स हमको क्या करना है? y1 अपॉन y2 फाइंड करना है। तो मेक द y1 अपॉन y2 सब्जेक्ट को इक्वेशन, तो क्या बचेगा? Alpha 2 by alpha 1. तो ठीक है, अभी ये 3:2। हाँ, तो ये आंसर 3:2 आ जाएगा, ठीक है? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। समझ आ रहा है भैया? Yes, sir. ओके, चलो। The extension in the string obeying the Hooke's law is x. The speed of the sound in the stretched string is a v. If the extension in the string is increased to 1.5x, then the speed of the sound will be. अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड वेव है और एक्सटेंशन है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने 15 चैप्टर का लास्ट लेक्चर अभी डिस्कस हमने किया था ना, चैप्टर नंबर 15? Yes, sir. तो स्पीड ऑफ द साउंड वेव का फॉर्मूला हमने कुछ ड्राइव किया था गामा पी बाय रो, यस और नो? Yes, अपॉन sir. रो। लास्ट लेक्चर, लास्ट थ्योरी याद है? याद है? Yes, sir. यस सर, लैप्लेस करेक्शन। लैप्लास करेक्शन, परफेक्ट। न्यूटन्स ने पहले दिया था, फिर लैप्लेस हाँ, ने न्यूटन्स में कुछ प्रॉब्लम था, न्यूटन में कहीं लोचो हो तो, मतलब न्यूटन में किया नहीं, था। न्यूटन में नहीं, न्यूटन के अजम्पशन में कुछ लोचा था। न्यूटन तो बराबर था। Yes, sir. तो स्पीड ऑफ द साउंड वेव शुड बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, यस और नो फ्रेंड्स? Yes, अब sir. इसको कोरिलेट करना है, इसको कोरिलेट करना है, ये करना है इसको, ये x के साथ। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे? अच्छा फ्रेंड्स, ये गलत है, हमारा ये फॉर्मूला ही गलत है। पूछो क्यों? क्यों सर? इट इज इन द फ्लूइड। और ये स्ट्रिंग तो सॉलिड है। एंड लॉन्जिट्यूडनल वेलोसिटी ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इन द सॉलिड, याद करो, वो भी दिया था हमने, वो भी डिस्कस किया था। लॉन्जिट्यूडनल waves can propagate in the all the mediums, याद है? Yes, तो sir. for a solid medium, what is the speed of the longitudinal wave? y बाई न्यू, रूट ऑफ y बाई न्यू। न्यू नहीं, रो, याद है? अगर याद नहीं है तो हमारे लास्ट लेक्चर का मैंने ऑलरेडी आपको सेंड किया है अपने एप्लीकेशन में, तो जस्ट लुक एट दैट एप्लीकेशन। सो एक्चुअली द फॉर्मूला वाज अ ई बाय रो था, एंड इन द केस ऑफ द सॉलिड मटेरियल इट इज अ वाई बाय रो, याद आ रहा है कुछ? एंड फ्लूइड मीडियम में वो बी बाय रो था, बल्क ग्रोस बाय रो, याद है? यस Yes, sir. अब आया y आ गया, देखो पिक्चर में, अब काम हो गया, अब हमारा काम हो गया। अब y इज इक्वल टू क्या होता है? फल नीचे आया। नहीं 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 नहीं, y तो नहीं होता है, y इज इक्वल टू Sorry, स्ट्रेस sir. अपॉन स्ट्रेन। हाँ, वो तो डेल्टा एल जो होता है ना, वो फल नीचे हाँ। आता है। हाँ, वैसे अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। चलो y निकाल दो, आपको ये फल मजा आती है ना, तो फल को नीचे लाते हैं, और कोई नहीं। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू फल नीचे आया, तो y को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाएंगे ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? FL delta. एफ एल बाई ए डेल्टा एल। तो y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा। अब डेल्टा एल को है ना x बोला हुआ है, एक्सटेंशन को x बोला हुआ है, तो एफ एल अपॉन ए एक्स हो जाएगा। Yes, sir. अब स्पीड जो है ना, स्पीड जो है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रूट ये वाई, राइट? यस सर। एंड
Young's modulus proportional to the root of extension, 1 upon root extension. Yes or no? Yes, sir. So can I say the speed of the sound wave proportional to 1 upon extension, root extension? ठीक है? Yes, sir. Is it okay? yes sir. यहाँ पे रूट नहीं आएगा, y proportional to 1 upon x. तो y proportional to 1 upon x मतलब रूट y proportional to क्या आएगा? 1 by root x. अब ठीक है, अब ठीक है? yes Yes, sir. अब ठीक है. अच्छा, तो v2 upon v1 इज इक्वल्स टू उल्टा नीचे आएगा आपका x2 upon x1 आएगा. अब x1 तो x है बट x2 क्या है? 1.5 है. तो ये हो जाएगा आपका रूट 1 अपॉन 1.5 मतलब 2/3 हो जाएगा. Yes, sir. 2/3 का मतलब 0.67 होगा. Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये 0.67 हुआ 2/3 मतलब. अब 0.64 का 0.8 होता है. तो Yes. ये 0.67 मतलब 0.8 से थोड़ा आगे पीछे होगा. yes sir. तो 0.8 के आसपास होना चाहिए. 0.7. मतलब ये कुछ गलत लग रहा है बिकॉज 0.8 से ज्यादा होना चाहिए. लेट मी चेक द सॉल्यूशन. मुझे लगता है कि कहीं पे गड़बड़ है. सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं इफ वी आर टेकिंग एनी वी आर मिस्टेकन और नॉट. क्रिटिकल का कौन सा क्वेश्चन है? Fourth. फोर्थ वन. ओके, यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू x है. गलत है भैया, एकदम गलत है. देखो फॉर्मूला देखो, यहाँ पे जिसने भी क्वेश्चन बनाया है ना उसने गलत सोचा हुआ है. स्पीड ऑफ द साउंड विद इन द स्ट्रेच वायर इज रूट टी बाई म्यू लिखा है. ये गलत, फॉर्मूला ही गलत है. ये रूट टी बाई म्यू किसके लिए होता है? ये तो भैया ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है. ये तो ट्रांसवर्स वेव एंड साउंड वेव आर द Longitude. लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. तो यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन किया है वही गलत है. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? yes sir. तो मैंने जो लिखा वो एकदम प्रॉपर है, यही सही है. साउंड वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स नहीं होता है, वो लॉन्जिट्यूडनल होता है. velocity of the transverse waves in the string can be given by the root t by mu. बट यहाँ पे थोड़ी ना साउंड वेव है. अगर यहाँ पे साउंड वेव के बदले अगर कोई पहले से ट्रांसवर्स वेव लिखा होता ना, ये साउंड वर्ड नहीं होता ना, ट्रांसवर्स वर्ड होता ना, तो वो लोग बराबर थे. तो उन लोगों का जो था वो बराबर था सॉल्यूशन. मतलब ये एररलेस का मैंने दिया हुआ है आपको. तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे साउंड वेव नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? Transverse. तो वहां पे जो सॉल्यूशन है वो ठीक है. बट फॉर द साउंड वेव मैंने जो किया वो बराबर है. ठीक है. yes sir. तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन द आंसर मस्ट बी नियर टू दिस. 0.81 समथिंग आएगा आंसर. ठीक है. यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे. इफ transverse wave is there, then you can apply the formula velocity of the sound wave is a root t by mu. ठीक है. where mu is equals to mass per length. is it okay friends? तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन sir. दिया गया है वो गलत समझ से दिया हुआ है. ठीक है. come to the question number 5.
फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप आराम से, इसके अंदर बहुत कम कंसेप्ट है और आज मैंने पूरे कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट थे चैप्टर के, पूरे डिस्कस किए। फ्रेंड्स इसको टारगेट करना है आपको जेडबल नीट के अंदर, ये चैप्टर को टारगेटेबल टाइप चैप्टर है। Okay, one end of the uniform wire of a length L and of the weight W is attached rigidly to the point and the roof of the weight W1 is suspended. देखो यहाँ पे दोनों चीज है, एक तो रिजिड वॉल के साथ वायर को सस्पेंड किया है, वायर का खुद का जो वेट है वो W1 है, और उसके साथ और कुछ अटैच किया हुआ है, उसके साथ कुछ वेट अटैच किया हुआ है। ठीक है, क्या है कि रूफ एंड द वेट ऑफ द सस्पेंड, मतलब W1 जो है वो सस्पेंड किया हुआ है, एंड वायर का खुद का वेट कितना है बोले, W है। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि द स्ट्रेस डेवलप्ड in the wire at the height 3L/4 from the lower end से 3L/4 हाइट पे, लोअर एंड से 3L/4 हाइट पे, मतलब ये पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे मुझे स्ट्रेस फाइंड करना है। तो मुझे ये बताओ कि इसको खींचने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस पॉइंट को? माझी माझी W प्लस W1। हाँ, नहीं भैया, ये पूरे वायर का W है, पूरे वायर। W/2 ठीक है, यस सर। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया, stress equals to force per area. अब how much the force is responsible to elongate this wire? 3W/2 W/4। हाँ, तो 3W/4 प्लस W1। ठीक है, मतलब यस यस ये सर, सर। वाला पार्ट, मतलब ये जो पार्ट है वो भी खींचेगा और नीचे का ये भी खींचेगा, दोनों कंबाइंड होके। मत नीचे का कितना है भैया, तो बोले उसका लेंथ 3L/4 है, तो फिर उसका वेट भी 3/4 टाइम हो जाएगा ना उसका, जो भी वेट है उसका। ठीक है, यस सर, तो टोटल वेट W है, मतलब L लेंथ के लिए अगर वेट W है तो 3L/4 लेंथ के लिए वेट वो कितना होगा, तो ऑब्वियसली 3W/4 होगा प्लस W1। ठीक है, यस सर। एंड उसका एरिया S है, तो A के बदले S सोचो, तो व्हाट शुड बी द आंसर फ्रेंड्स? ठीक है, ऑप्शन सी। W1 plus 3W/4 है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर टू वायर्स ऑफ अ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है मतलब यंग्स मॉडुलस सेम होगा, सेम लेंथ सेम डायमीटर, नहीं, same length, while the diameter of the second wire d2 is 2 times than the diameter of the first wire, मतलब d2 is equals to 2d1, l1 is equals to l2, सेम मटेरियल का मतलब y1 is equals to y2, यंग्स मॉडुलस सेम होगा। सो एक्सटेंशन ऑफ द वायर बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स, ठीक है, F1 is equals to F2 भी दिया हुआ है, एंड एलोंगेशन फाइंड करना है, उसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको आएगा, बोलो क्या लिखूं, बोलो भैया मैं, डेल्टा L is equals to, फल नीचे आया। फल नीचे आया। तो फल ए के बदले कहना इसे पाई d स्क्वायर बाई 4 क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, r इज इक्वल टू d बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 फल अपॉन पाई d स्क्वायर y। अब कौन कौन सेम है, तो बोले फोर्स सेम लोड अप्लाई किया हुआ है, लेंथ भी सेम है, y भी सेम है, एंड वैसे भी 4/पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा ओनली, 1/d²। तो डेल्टा L फॉर 1 अपॉन डेल्टा L फॉर 2 इज इक्वल टू, कैन आई से d2/d1 द होल स्क्वायर। यस सर,
अब D2 जो है वो 2D दिया हुआ है, D1 जो है वो D है, तो आंसर आएगा 4:1। ठीक है, आया बात समझ में? यस सर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। यस सर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Particle of a mass m under the influence of the force F, which varies with the displacement as per the given formula, F is equals to minus kx plus f naught, where k and f naught are the constant. The particle when the disturbed will oscillate. The particle when disturbed will oscillate about, अच्छा about what? Okay. तो यहाँ पे f is equals to minus kx plus f0 है. It is unlike f is equals to minus kx. अगर f is equals to minus kx होता तो आपको पता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. तो यहाँ पे क्या है भैया, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट मुझे फाइंड करना है. एक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मुझे फाइंड करना है और दूसरा उसका ओमेगा फाइंड करना है. ठीक है, चलो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी फाइंड करना है, उसका ओमेगा भी फाइंड करना है. ओके, कोई बात नहीं. ओके, कैसे करेंगे? के कांस्टेंट है, f0 कांस्टेंट है. कैसे करेंगे? हम ये तो कर सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस f0. एम ए तो कर सकते हैं. ओके, चलो कोई नहीं. तो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स प्लस f0 बाई m, ऐसा हो सकता है. ठीक है, यस yes or no? यस सर। यस सर। ओके, सर बोलो. डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना। नहीं, वो कंपेयर तो करेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो इसके टाइप का है नहीं. चलो, लेट्स डू वन थिंग. कैन आई से इट इज अ dv by dt? यस सर। Okay, let's see. ओके, अब क्या? v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k बाय m को बाहर निकाल देते हैं. ये x इंटू डी एक्स करेंगे, dt बाई डी एक्स हो जाएगा ऐसा. ठीक है, यस सर। मैंने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड कर दिया. ठीक है, इंटीग्रेशन x dx का क्या होता है? ln x। अरे 1 अपॉन एक्स का ln x होता है. इंटीग्रेशन x का होता है x स्क्वायर बाई 2, एंड dt बाई डी एक्स मतलब 1 अपॉन v प्लस f0 बाई m इंटू टी, ऐसा होगा. तो ये नहीं मजा आएगा. चलो एक काम करते हैं, लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन.
डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, देखो हाफ सॉल्यूशन तो ठीक है कि भाई अगर फोर्स रिजल्टेंट जीरो है तो x इज इक्वल टू एफ जीरो बाई के होगा। तो फ्रेंड्स ये तो बराबर है कि इट विल ऑसिलेट विद रिस्पेक्ट टू एफ जीरो बाई के, उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बट उसका ओमेगा कैसे मिलेगा वो सॉल्यूशन में नहीं लिखा है। देखो एक अच्छी बात तो ये है कि फ्रेंड्स हमको कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट करेगा उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है वो तो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखो फोर्स क्या दिया हुआ है, माइनस के एक्स प्लस एफ जीरो दिया हुआ है, यस और नो? ठीक है, यस और नो फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर जी, यस यस सर। सर जी है। अच्छा, तो अब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स जीरो कर दे तो वो जो x मिलेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो मेक द f zero here. So f0 is equals to minus k, let us assume to be equilibrium point is x0 plus f0। तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको क्या मिलेगा? f0 by k। मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वो ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे जाएगा। तो इट विल ओसिलेट अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब f0 by k। बट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर कि दोनों में से कौन सा आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी आएगा, बिकॉज ये जो x का जो कोफिशिएंट है ना रूट के, वही हमारे लिए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इट विल जस्ट ओसिलेट विद रिस्पेक्ट टू f0 by m। वो उसका उसके रिस्पेक्ट में वो ओसिलेट करेगा एंड उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो रूट के बाय एम, दैट इज एज पर एस एच एम। एस एच एम तो है ही बिकॉज एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स तो है ही। बट खाली फर्क ये आएगा कि भाई इसका जो ओसिलेशन है वो ओरिजिन के बदले एफ जीरो बाई के रिस्पेक्ट में करेगा। एंड ये जो एक इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली इस चैप्टर का है ही नहीं। ये क्वेश्चन किसका है? चैप्टर नंबर 14। इज दैट क्लियर? सो ऑप्शन यस सी शुड सर। बी द आंसर। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे एक ट्राई करना, आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का ट्राई करना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का ट्राई करना। सर किया वो रूट ऑफ माइनस के बाई एम, सॉरी के बाई एम एक्स प्लस सॉरी माइनस एफ नॉट बाई एम, ऐसा कुछ आ रहा है अलग। एक्चुअली इन दैट इक्वेशन एक्स शुड नॉट बी देयर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में एक्स नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सोचना है आपको कि ये f0 जो है ना उसके वजह से क्या होता है, उसका खाली जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा, बट उसका ओमेगा जो है ना एसएचएम का वो तो वही रहेगा। तो वो ओमेगा तो वही रहेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी कैन से द ओमेगा बिल्ड रिमेन्स द सेम, दैट इज के बाय एम। ओके, पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज गोइंग टू बी चेंज, बट x का जो कोएफिशिएंट है ना वो तो k ही है। x का जो कोएफिशिएंट है वो तो k ही है, तो मतलब वो उसका ओमेगा तो वही रहेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन। An elastic material of a Young's modulus y is subjected to the stress S. The energy, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी आपको हमने डिस्कस किया था, क्या था? हाफ हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, यस और नो? बट यहाँ पे हमको क्या रखना है, कौन कौन सी चीज रखनी है? तो स्ट्रेस रखना है, यंग्स मॉडुलस रखना है, मतलब स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस को रखना है। स्ट्रेस कितना दिया हुआ है हमको? एस दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस रखना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल। एंड स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस रखते हैं।
आपको पता है कि यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, कैन आई से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस यंग्स अपॉन यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस। यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला एस है, तो एस बाई वाई होगा। यस सर। तो इट शुड बी अ एस स्क्वायर अपॉन 2y इंटू ए एल। ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ, गंदी बात, हमको क्या फाइंड करना है? पर यूनिट वॉल्यूम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इज इट ओके नाउ? यस सर। तो हमको है ना एनर्जी नहीं, एनर्जी पर वॉल्यूम फाइंड करना था, तो वो अब बराबर है, ठीक है। यस। सो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको क्रिटिकल क्वेश्चंस सारे डिस्कस किए, एंड पूरे चैप्टर का जो भी थ्योरी कंसेप्ट था वो पूरा मैंने यहाँ पे आज आपको डिस्कस किया अलॉन्ग विद द शॉर्टकट्स। तो इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, उसको थोड़ा देखना एक बार। एंड नेक्स्ट लेक्चर में संतोष सर आपके बल्क मॉडुलस एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करके चैप्टर को खत्म कर देंगे, ओके। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट्स कलेक्ट कर लिया होगा ऑफिस से। तो अगर नहीं कलेक्ट किया है तो ऑफिस से ये नोट्स कलेक्ट कर लेना, ठीक है। यस सर। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय सर। बाय।